Shiva Shiva Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho
उसमें भेजा था, देखा आपने? नहीं महादेव शंभो, ये देखो आप, आज टाइम मिले तो शुरू करने वाले थे, जाके देखो आप। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो,
जय जय शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो महादेव गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, welcome to this webinar Stress No More. Let us have a quick audio and video check. If अगर मेरी आवाज और मेरी वीडियो दोनों ठीक सुनाई पड़ रही हैं और दिख रही हैं तो थैंक यू. If it is clear, my video is clear, my voice is clear, write chat box C. Write C in the chat box. Be fast. Very important webinar. Avoid all distractions. Mute your mic. Yes. If my voice is clear and my video is clear, write C in the chat box. Welcome Bhupen Shrivastava ji. Welcome Ashish Jain ji. Welcome Ram Bhojwani ji. Yes. Clear. My video is clear. Okay. Right. Very good. Yes. Okay. Yes. Just have a keep. आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग कहाँ से हैं. Yes. Please write from Bhopal. Very good. Yes. Come on please. ये वेबिनार है, इसको 2-way बनाने के लिए. Yes, from Kashmir. Beautiful place. Very good. Yes, Gwalior, Kashmir, Bhopal. Okay. Yes, Harpreet Kaur ji. Bees. This is in UP. Where it is? Bees. Okay. Punjab. Very good. Punjab. Yes. Nice. Yes. Come on. Ambala. Yes. Haryana. Near Chandigarh. Switzerland of India. Okay. Yes. Welcome, Doctor. Please welcome. Okay. Yes. Gorakhpur. Oh yes, beautiful. Yes. Okay. Unmute कर दें. Just वेबिनार एक स्ट्रेस सीरीज है पूरी की पूरी, और मैं इतनी जगह घूमने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, इतने पेशेंट्स देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि सारा जो कल्प्रिट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, एंगर, सारा जो कल्प्रिट है वो स्ट्रेस ही है. तो उसी पे चर्चा करेंगे. चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले जस्ट जैसे आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ऐसे मैं भी जो है चाहता हूँ कि मैंने जब गीता में पढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि काफी समय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को काफी समझाते रहे, तो अर्जुन जी जो है समझ नहीं पाए. उनको सकाई समझ रहे थे, उनकी बात सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में नहीं जा पा रही थी. फिर उन्होंने उसको विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के बाद
उनको समझ में आया कि यही जो है परम पिता परमात्मा है और यही सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और जो है उनको हर चीज उसके बाद मैं तो इनको सखा और अपना दोस्त समझ रहा था। वाकई वो तो ये तो जो है श्री परम पिता परमात्मा ही है। उसके बाद जो भी बात श्री कृष्ण ने बोली अर्जुन की हर मेमोरी सेल तक गई और उसके कॉशियस माइंड में गई। उसको ये सब चीज क्लियर हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर ना होके पर आत्मा हूँ, मैं करंट हूँ। वो उसकी बात समझ में आ गया और उसके बाद हर चीज गई। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज समझने के लिए, मानने के लिए, जानने के लिए तीन तरीके हैं। या तो यह है कि हम उसको एज्यूम कर लें, या हम उसको जो है ऑथेंटिसिटी से समझ लें, या हम उसको जो है खुद देख के समझ लें। एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस और ईएनटी सर्जन हूँ। तो अगर मैं वैसे ही बुक्स पढ़ के डॉक्टर बन जाता तो मुझे कोई डॉक्टर मानता क्या? नहीं मानता। मेरे को जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, ऑथेंटिसिटी मिलती है, उसके बाद ही जो है मैं डॉक्टर के रूप में आता हूँ। ऐसे ही अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, अपने जो वेद हैं, अपने जो शास्त्र हैं, ये एक ऑथेंटिसिटी का प्रूफ है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं और जो हम स्ट्रेस को दूर करने के हॉलिस्टिक मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो सब जो है स्क्रिप्चर से लिए हुए हैं। अपनी बात की थोड़ी सी ईगोवश नहीं, आप लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन बताया है, तो मैं भी चाहता हूं कि छोटा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन आप लोग मेरा भी लें। उसके बाद अब वेबिनार की शुरुआत करते हैं। ओके, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी शेयरिंग भी इजीली हो सके। ओके, जस्ट हैव ए क्विक लुक ऑफ माय इंट्रोडक्शन प्लीज। यस, from Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care.
Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू. यस, आज का टॉपिक है स्ट्रेस. चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि स्ट्रेस कहाँ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है. हैंड से स्टार्ट होती है, लंग से स्टार्ट होती है, टंग से स्टार्ट होती है, कहाँ से? माइंड से. यस संदीप जी, थैंक यू. यस रिडीम 99th माइंड. यस ओके. अदर सब लोग पार्टिसिपेट करें तो 2 वे हो जाएगा ये. यस माइंड से अर्पित. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस, माइंड 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 माइंड. ओके. यस, काफी लोगों ने सही बताया. ये बिल्कुल माइंड से स्ट्रेस जनरेट होती है. तो थोड़ा सा माइंड के बारे में समझ लेते हैं और अपनी बॉडी का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं. क्या है कि ये अपनी जो बॉडी है वो इसके अंदर एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं. ब्रेन, और ये रहती है बॉडी, और स्कल के अंदर रहता है ब्रेन. और जो कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में हम लोग जिसमें एनाटॉमी वगैरह में डिसेक्शन वगैरह करते थे, ब्रेन. ब्रेन क्या है? हार्डवेयर है. और बॉडी भी क्या है? हार्डवेयर है, मतलब मैटर है. माइंड क्या है? आप ये समझ लीजिए, माइंड को समझने के लिए कि माइंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करती है. या दूसरे रूप में समझ सकते हैं आप कि बॉडी के अंदर एक एनर्जेटिक कैमरा फिक्स्ड है जो हमारी थॉट्स, हमारी इंटेंशंस, हमारे फीलिंग्स को जो है कैप्चर करता है. और वो कैप्चर करके जो है अपने माइंड, अपने ब्रेन में डालता है. वो ब्रेन से हार्ट में वो एम्पलीफाई हो, हार्ट में जाती हैं, वो हार्ट से एम्पलीफाई होकर अपनी बॉडी में एक्ट करती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने सुबह कोई खुशी का समाचार सुन लिया तो हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव थॉट आता है. हमारे पॉजिटिव थॉट की जो है जो थॉट्स की इंटेंशंस हैं वो सीधे हमारे ब्रेन में जाती हैं. उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है और वही सर्किट एम्पलीफाई होके हमारी बॉडी के उसमें नजर आने लग जाता है. हम उत्साहित हो जाते हैं. ऐसी मॉर्निंग में अगर हम लोग कोई बैड समाचार, कोई एक्सीडेंट या किसी की डेथ का समाचार सुन लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव थॉट कैप्चर होकर पहुंच जाता है माइंड से, और माइंड जो है ब्रेन में देता है, वही एम्पलीफाई होकर हमारे अंदर नजर आता है. तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स. कैसे? ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स. और ये जो करंट है, जैसे कि ये जो करंट है जिसको कि हम लोग माइंड बोल रहे हैं, जो कि ब्रेन को और बॉडी को कनेक्ट करता है, वही समझ लीजिए कि प्राण है. वही एक ऐसी, जिसको कई लोग सोल बोलते हैं, वही एक करंट है कि जैसे हम लोग ईईजी करते हैं, ईसीजी करते हैं, तो उसमें करंट की लेयर्स ही आती है. तो अब ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस, ये दोनों एक ही चीज है. जैसे गीता में कहा गया है कि तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, एक ये तीनों गुण जो हैं हर आदमी के अंदर रहते हैं.
तमो मीन्स लेजीनेस जो कि नींद के काम आता है, रजो मीन्स जो एक्टिवनेस में काम आता है, वो सतो जो है इन दोनों को बैलेंस करता है। अपने शास्त्रों ने यही चीज को दूसरे रूप से बोला है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु जो है बैलेंस करता है, और शिव जो है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ये चीज हमारी साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मेरी बॉडी है, अगर मेरी बॉडी को अगर मैं अभी आप देख रहे हैं तो मैं डॉक्टर साहनी आप लोगों को नजर आ रहा हूं, पर अगर आप मेरा एक्सरे करेंगे तो एक स्केलेटन नजर आएगा, तो स्केलेटन देख के आप लोग भाग जाएंगे। अगर मेरा पेट स्कैनिंग करेंगे तो पेट्स नजर आएंगे, तो अगर और उसको जूम करेंगे और जूम करेंगे तो टिश्यूज नजर आएंगे, मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, एटम्स नजर आएंगे, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजर आएगा। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हुए नजर आएंगे, तो न्यूक्लियस बीच में होगा। नटशेल कहने का मतलब यह है कि मैं एक स्पेस ही हूँ, एनर्जी ही हूँ। ये जो फिर आप कहोगे कि ये ताली कैसे बज रही है, ताली जो बज रही है ये सिर्फ जो है मेरे माइंड का, मेरी एनर्जी का परसेप्शन है, जो कि मेरे को महसूस हो रहा है। बाकी है सब स्पेस है, पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो है सारी ये जो है स्पेस में एनर्जी ही चल रही है, एनर्जी का ही सारा। ये टेबल में भी एनर्जी है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोगों ने साइलेंस विसल या डॉग विसल का नाम सुना होगा। आदमी जब, डॉग विसल क्या होती है? डॉग विसल ये होती है कि जब डॉग का मालिक विसल बजाता है तो डॉग जितनी भी दूर हो उसको सुन के आ जाता है, पर उसकी विसल हम लोग नहीं सुन पाते, हम लोग नहीं सुन पाते। तो क्यों? क्योंकि हमारे में वो क्षमता नहीं है। ये जिसपे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ वो भी क्या है, एनर्जी ही है, पर यह है कि मैटर में कन्वर्ट हुई हुई है। ये हमारे ऋषिज ने जो बोला है, वही साइंटिस्ट आइंस्टीन ने बोला है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। यही चीज जो है फ्रेंच के पोएट ने बोली है, जो सब लोग बोलते हुए आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये पोएम उसने जब लिखी थी जब उसकी उम्र 75 साल की थी, और उसका एक दोस्त 70 साल का था, जो दोनों बैठ के बियर पी रहे थे। तो बियर पीते पीते जो है उसका जो 70 ईयर्स वाला दोस्त था, वो उसमें से करंट चला गया, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, और वो वैसा का वैसा ही रह गया। तो उस साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसा क्या है कि ये दिख तो वैसा ही रहा है और सब कुछ वैसा ही है, पर ऐसा क्या हो गया कि ये एकदम अचानक इसमें से सब कुछ चला गया। जब उसने एक पोएम लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब जस्ट अबोव द स्काई, वो पोएम तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये मेरे को ये सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी जो बॉडी है, ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो एनर्जी है उसी से हम लोग कनेक्टेड हैं। वो माइंड भी क्या है, दो तरह से है, कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड। कॉशियस माइंड क्या है? जो आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसकी क्षमता जो है 5% है। वो जो सब कॉशियस माइंड है उसकी क्षमता जो है 95% है। और जो लोग 8% लोग रिसर्चेस हैं जो 95% से चल रहे हैं, वही सक्सेस, नेम और फेम उनके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में उनके सामने आ रही है। और 92% लोग जो है जनरली आ रहे हैं और जा रहे हैं कॉशियस माइंड से ही। जो कॉशियस माइंड है वो तर्क वितर्क का माइंड है। कॉशियस माइंड जो है तर्क वितर्क का माइंड है, और तर्क वितर्क का माइंड जो है एनालिसिस में ही लगा रहता है। एक दूसरे रूप से पूरी एक जरा से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हमने को कोई भी चीज को ठीक करना है, जैसे स्ट्रेस को ठीक करना है, स्ट्रेस अगर आपने बोला है कि माइंड में होती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ ठीक करना है। मैं आपको समझाता हूँ कि एक समझ लीजिए कि एक मकान है, एक मकान के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है, और चौकीदार हर 15 दिन बाद उस दरवाजे के ऊपर ऊधम मचता है, और लोग आते हैं उस चौकीदार को समझा के चले जाते हैं, और चौकीदार जो है तुरंत बाद में जाने क्या झपटियां लेता है, फिर 15 दिन बाद जो है ऊधम मचता है। होता क्या है कि जो मालिक मकान है वो हर 15 दिन बाद बंदूक लेकर आता है, बाहर उपरोक्त
बाहर उधम मचाता है और फिर वो चला जाता है। वो लोग आके चौकीदार को समझा देते हैं। ये चौकीदार क्या है? कॉशियस माइंड है। वो बीमारी कहाँ से आ रही है? वो सब कॉशियस माइंड से आ रही है। इस सब कॉशियस माइंड में जब तक आप सब कॉशियस माइंड को नहीं समझाएंगे, आपकी कोई भी बीमारी स्ट्रेस से रिलेटेड, जो स्ट्रेस मतलब सब बीमारियों का जड़ एक ही है, स्ट्रेस नहीं दूर होगी। तो उम्मीद है कि ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सब कॉशियस माइंड इमेजेस को समझता है। तो जस्ट मैं अपनी स्लाइड्स को स्क्रॉल करता हूं, फिर मैं आप लोगों से आगे की परमिशन लेकर आगे चलते हैं। ये ब्रेन इज मैटर, आई हैव टोल्ड यू। बॉडी इज ऑल्सो ए मैटर, बॉडी मैटर। ब्रेन के अंदर ही माइंड होता है, जो कि एनर्जेटिक एक कैमरा है। और टू टाइप्स ऑफ माइंड होते हैं, कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड। और करंट जो अपने अंदर चल रहा है, जिससे कि अपनी बॉडी और माइंड का, बॉडी और ब्रेन कनेक्टेड है, जिसको हम लोग सोल बोलते हैं, वही जो है वही है। ये जस्ट मैंने आपको बताया। इतना अगर आपको क्लियर है तो गिव मी द परमिशन टू मूव फॉरवर्ड। Give write chat P in the chat box. Write P in the chat box. If it is clear, you can give me the permission to move forward. Okay. Thank you, Bhupenji. Thank you. Thank you. Redim 95. Yes, Ishaji. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Okay. Yes. Just to start our webinar, before starting the webinar, we will do gratitude prayer. Be comfortable. Take a power posture. पावर पोस्चर का मतलब ये होता है कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखें, अपनी नेक को स्ट्रेट रखें और अपनी चिन को पैरेलल टू द लैंड रखें, जिससे कि अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के बारे में तो आपने सुना है, न्यूट्रॉन, सब एनर्जीज के बारे में सुना है, पर जो वाइटल एनर्जीज अपने अंदर इनबिल्ट हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो जस्ट वी हैव ए ग्रेटिट्यूड प्रेयर फॉर 1 minute, then we will proceed forward. Be comfortable, close your eyes. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, आप पराजित होए रे। इस
धरती के करते मिल कर कर में धर्म समोय रे शूस धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे. Open your eyes. If you are feeling happy, write H in the chat box. If you are feeling sad, write S in the S in the chat box. Please be fast. Yes, Bhupenji, very happy. Yes, happy, pretty happy. Okay. ये happy. Okay. Everybody is writing happy. मैंने जैसा कि आपको बताया कि माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड. ऐसे ही क्या होता है, ब्रेन के भी दो पार्ट्स रहते हैं, जिसको हम एक पार्ट को बोलते हैं एंजल्स ब्रेन, जिसको राम भी बोल सकते हैं, श्याम भी बोल सकते हैं, कृष्ण भी बोल सकते हैं. और एक होता है डेविल ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं रावण भी बोल सकते हैं. तो क्या है कि जो हमारा है, जो एंजल्स ब्रेन है, जिसको हम देवताई ब्रेन या राम ब्रेन बोलते हैं या कृष्ण ब्रेन बोलते हैं, वो उसको क्यों बोलते हैं हैप्पी ब्रेन? क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स. उसको याद रखने के लिए आप DOSE, डोज, मैं ऐसे याद रखता हूँ, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स. और जो एविल ब्रेन है, जो राक्षसी ब्रेन है, वो दो केमिकल रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ये एड्रेनलिन रिलीज होते हैं तो सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालते हैं, तो आदमी डिजीजेस से घिर जाता है. जब हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं, जैसे अभी अपन ने की, आप सब लोगों ने लिखा कि हैप्पी फील कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज किए, जो डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स है. और अगर आप जैसे गुस्सा करते, हेट्रेट करते, जेलसी करते, लड़ाई करते, तो आपका जो राक्षसी ब्रेन है, जिसको हम रावण ब्रेन भी कह सकते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता और एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते, आपको ट्रेकिकार्डिया हो जाता, मतलब आपकी पल्स बढ़ जाती, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता, आपको ब्लशिंग हो जाती. तो ये जो ग्रेटिट्यूड प्रेयर मैंने आपको कराई है, इसके पीछे भी मकसद है कि आप मेरे वेबिनार को खुशी से देखें. जब अपन कोई खुशी से और उत्साहित होकर चीज को देखते हैं, तो वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि माइंड में ये तर्क वितर्क नहीं करता, मानता जाता है. तो दोस्तों, अब हम वेबिनार के जो हमारा स्ट्रेस नोमो है, उसके बारे में इस चर्चा पे आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. आप लोगों की जो क्वेरीज हो, एक लिख लीजिएगा, लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर सेशंस ले लेंगे. देखिए, स्ट्रेस देखने में आ रहा है कि वर्क प्लेस पे भी है, होम में भी है, रिलेशंस में भी है, कॉलेजेस में भी है और स्कूल्स पे भी है. आजकल फंक्शनल एफोनिया, मतलब एकदम बोलना बंद कर देते हैं बच्चे, जस्ट टू एक्सप्रेस देयर टेंशन और स्ट्रेस. तो इस चीज को देखने के लिए बच्चों में भी स्ट्रेस है, हम लोग उनको एंटी एंजाइटी लिखनी पड़ती है. रिलेशंस में भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. जब आप वर्क प्लेस से आते हैं, तो वर्क प्लेस को हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप नहीं बनाते हैं. हम लोग वर्क प्लेस में उलझने पैदा करते हैं. तो उन्हीं उलझनों के साथ जब हम घर पे आते हैं उलझे हुए, तो बेटर यही है कि चलो वहां उलझ गए, कोई बात नहीं, काम खत्म हो गया. घर पे आते हैं तो उलझने पकड़ लेते हैं, टीवी पकड़ लेंगे, मोबाइल पकड़ लेंगे, अखबार पकड़ लेंगे.
पर आप ये देखिए ना, जो काम आप वर्क प्लेस में कर रहे थे वही आप घर पे कर रहे हैं, तो घर पे भी आपने उलझन पकड़ ली। तो जब आप घर पे उलझन पकड़ लेते हैं तो आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, तो वो भी जो है एक उलझन के रूप में ही आपके सामने आ जाते हैं। और ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में है कि एग्जाम्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सब चीजों में क्या है कि बच्चे जो है उलझे पड़े हैं। बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो स्क्विगल टाइप रहती है, मस्तानी रहती है। पर क्या है, टीचर्स, स्कूल वाले, पेरेंट्स सब उसको जो है बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, एक डिसिप्लिन बॉय बनाने की कोशिश करते हैं। जब किसी चीज को जबरदस्ती बनाते हैं तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आता है, प्रेशर बढ़ता है और आदमी की स्ट्रेस बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे जिस काम पे आप जाते हैं उसी को अपना पैशन बनाएं। तो जब आप पैशन बनाएंगे तो अपना काम समझ के उसको पैशनेटली करेंगे, वो ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ करेंगे, तो वही वर्क आपका वर्शिप बन जाता है। तो वही वर्शिप करके जब आप घर पे आते हैं तो उसी माइंडसेट के साथ आते हैं, तो आपका मेडिटेटिव माइंड बन जाता है। तो जब आपका मेडिटेटिव माइंड बन जाता है तो जो उलझन जो है वो आपको उलझन नहीं, चैलेंज नजर आने लग जाता है। तो आपकी जो स्पाउस वगैरह आपसे जो एक्सपेक्ट करती हैं, आप उनको इजीली लेट गो करके सुलझा सकते हैं, सुलझा लेते हैं। एक्सक्यूज मी। यही प्रॉब्लम स्कूल और कॉलेजेस में है। हम लोग जाने अनजाने में बच्चों में कंपटीशन भाव डाल देते हैं कि बेटा, किसी बच्चे ने कहा कि मेरी पेंसिल चुरा ली, तो हम कहते हैं अगली बार तू बॉक्स चुरा के ले आना। तो ये जाने, और देख तू भैया, तेरे जो है फलाने का लड़का जो है डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, तुझे भी वैसा बनना है। तो आप उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक कंपटीशन का भाव डाल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है स्ट्रेस को करती हैं। स्ट्रेस वर्क प्लेस पे भी है, होम पे भी है, रिलेशन में भी है, स्कूल में भी है और कॉलेज में है। तो अभी लेटेस्ट सर्वे के बाद ये मालूम पड़ा है कि मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे एंजाइटी जो है 37.1% इंक्रीज हो गई, स्ट्रेस जो है 28.1% इंक्रीज हुई है, एडिक्शन जो है 17.2% इंक्रीज हुआ है, और एंगर जो है 12.0% इंक्रीज हुई है। तो ये लेटेस्ट सर्वे है कि स्ट्रेस की वजह से पेंडेमिक के बाद जो सर्वे हुआ है उसमें 37% एंजाइटी का इंक्रीज, स्ट्रेस का 28% इंक्रीज, एडिक्शन मींस ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह का एडिक्शन 17%, वो एंगर का 12% इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या स्ट्रेस गुड है कि बैड है कि बोथ है। चैट बॉक्स बताइए, स्ट्रेस गुड है कि बैड है। बैड, ओके, बैड, ओके, बोथ, बैड। प्रेम आहूजा जी, ओके, किशन जी बोथ, ओके, ओके, किशन सिंगल जी वेलकम टू द वेबिनार, गुड इवनिंग सर, ओके, थैंक यू। निखिल उपाध्याय जी बैड, ओके, यस, ज्यादातर लोग बैड बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो हम पहले अपने वेबिनार को इस तरह से हमने उसको विभाजित किया है कि इस पे चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस गुड है कि बैड है। फिर हम अपने असेसमेंट करेंगे करंट लेवल का कि हम कौन से लेवल पे चल रहे हैं। फिर हम देखेंगे रोल ऑफ इमोशन क्या है स्ट्रेस में। फिर अपन डिस्कस करेंगे 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज और एक स्ट्रेस इज लाइफ व्हेन नो प्रॉब्लम मींस नो स्ट्रेस यू आर डेड। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि मैं स्ट्रेस लेस लाइफ चाहता हूं, तो उन्होंने कहा स्ट्रेस लेस लाइफ नहीं होती है। ये तो हम भी देखते हैं साइंटिफिकली कि जब तक आदमी जिंदा है तो ईसीजी ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। और जब आदमी की डेथ हो जाती है तो स्ट्रेट लाइन आती है। मतलब कहने का ये है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो देयर इज नो लाइफ। इफ देयर इज ए लाइफ देयर इज ए स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस गुड कहाँ है और गुड बैड कहाँ है, इस पे चर्चा करेंगे।
अब सब लोग फिर अलर्ट होके पावर पोस्चर में बैठ जाएं, क्योंकि मैं आपको एक डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस बताने वाला हूं, जिससे ये प्रूफ होगा कि कब तक अपनी स्ट्रेस गुड है और उसके बाद बैड है, और कैसे बैड है वो क्यों गुड है, इस पे चर्चा करेंगे। तो बी अलर्ट, सी द थिंग्स। स्पाइरल तो आप लोग जानते हैं, स्पाइरल तो आप लोग जानते हैं, ये डाउनवर्ड स्पाइरल की बात कर रहा हूं। डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल मतलब क्या है, कहां से हम लोगों ने शुरू किया और कैसे नीचे नीचे स्ट्रेस में आते जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे स्टेप वन में क्या है, जैसे मान लो सुबह आप उठे और आपको एक फोन कॉल आ गया कि किसी खास दोस्त के एक्सीडेंट हो गया, टेलीफोनिक मैसेज आ गया, जिससे कि आपको जो है ये लगने लगा अनप्रिडिक्टेबल है, आ सकता है। जैसे लॉकडाउन लग गया, अनप्रिडिक्टेबल है, लग सकता है, प्रॉब्लम आ गई। अब ये क्या है कि अगर हम इसको, आपने देखा कि ठीक है, आपने सोच लिया, मन में बना लिया कि ओके यार ये बड़ा बुरा हुआ, मेरा खास दोस्त था, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में दिल्ली जा रहा हूँ, उसको देख लूंगा, तो जो मदद होगी मैं कर दूंगा, समाप्त कर दिया। तो होता क्या है, उसी को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, अपनी स्पाउस को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने जो एम्प्लॉय आएंगे उनको बताएंगे कि ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो जब चीज को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो वो फिर एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चली जाती है, और वो फिर स्टेप 2 बन जाती है। तो स्टेप 1 तक तो क्या है कि आपकी जो स्ट्रेस है गुड है। अब आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है कि जैसे मान लो अचानक कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, आ सकती है, जैसे मान लो शेर आ गया आपके सामने। अब जैसे आपके यहाँ शेर आ जाएगा, तो आपकी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली, आपका जो एविल ब्रेन है, जो उसमें से स्टीरॉइड और एड्रेनलिन रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, या आपको भागने पे मजबूर करेंगे, या आपको सिलेंडर होने पे मजबूर करेंगे, या आपको जो है लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। मतलब या फाइट मूड में आ जाएंगे, या फ्लाइट मूड में आ जाएंगे, या क्विट कर जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, इसमें बॉडी खुद गियर अप हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है। तो मित्रों, स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो स्ट्रेस है वो गुड है। ये अगर नहीं होगी, जैसे एग्जाम्स में थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, वो जरूरी है, क्योंकि क्या अपना पल्स रेट बढ़ता है, अपने एग्जाम आप देखिए, एक बार पढ़ते हैं याद हो जाता है। तो इतनी जो स्ट्रेस है, थोड़ी स्ट्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्या है कि आपको चलाने के लिए, अब जब सुबह भी जब अपन मॉर्निंग में उठते हैं, तो अपना जो एविल ब्रेन है थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ होता है, जिसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज निकलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, टॉयलेट्स वगैरह सब हो जाता है, अपनी बॉडी लाइट हो जाती है। पर अगर उसी मोड में अगर हम चलते रहे, उसी मोड में, जैसे सिंपैथेटिक मोड जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर हम चलते रहे, तो दिन भर इरिटेटेड रहेंगे, जो लोग ज्यादातर कर रहे हैं। पर कई लोग जो समझदार हैं, थोड़ा अपना ये सिंपैथेटिक मोड से उठकर 10 मिनट अपने साथ बैठते हैं, किसी भी रूप में, जिसे अपन मेडिटेशन का नाम भी देते हैं, रिलैक्सेशन का नाम भी देते हैं, तो हमारा मोड चेंज हो जाता है, वो हम जो है हैप्पी हार्मोन्स की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा जो है फिर लेट गो पैरासिम्पैथेटिक मूड, जिसमें कि सारी बॉडी जो है चल रही है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, आपको मालूम थोड़ी है। ये हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, उसको जो है गवर्न कर रहा है, जो कि आपको नहीं कर रहा, नहीं, जो कि आपको नहीं मालूम। पर ज्यादातर लोग सिंपैथेटिक मोड में चल रहे हैं, इरिटेटेड चल रहे हैं, गुस्सा करते हुए चल रहे हैं, रिएक्ट करते हुए चल रहे हैं, एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं, इसलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मित्रों, स्टेप 1 और स्टेप 2 की स्ट्रेस जो है अच्छी है। इस स्टेज पे अगर हम लोग अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ इट इज क्लियर, गिव मी द परमिशन टू गो टू स्टेज 3. Write P in the chat box. Okay, thank you. Thank you, सुलेखा जी, सुलेखा कुमारी, थैंक यू। भूपेन जी, वेरी गुड। अब बात करते हैं स्टेप 3 में।
तो हुआ क्या कि बॉडी गियर अप हो गई, आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनलिन रिलीज हो गए, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, हमारे अंदर एक बुरा विचार चलता रहा, अब मेरा क्या होगा, मेरे गले में दर्द हो गया। किसी ने कह दिया, जैसे बहू ने कहा अपनी पड़ोसिन से कि यार मेरी जो है गले में दर्द है, तो वो तुरंत बोलती है कि मेरी सास को गले में दर्द हुआ था, डॉक्टर सानी के यहाँ गए थे, दूरबीन से जांच की, कैंसर बताया, बॉम्बे भेजा, 4 लाख रुपए लग गए, पर वो मर गई। अब उसके अंदर दिमाग में एक चढ़ी कि मेरे भी गले में दर्द है, मेरे भी गले में दर्द है, मेरे भी गले में दर्द है, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। तो बार 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 उस चीज को जब हम रिपीट करते हैं तो वो इमोशन बन जाता है। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, वो अब एनर्जी बन गई। तो सीधे जो है अपने माइंड के उस एनर्जेटिक कैमरे से आई, वो ब्रेन के अंदर गई, वो एविल ब्रेन को उसने एक्टिवेट कर दिया। रिलीज हो रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनलिन, जिससे कि आपके अंदर इमोशन डेवलप हो रहा है, फियर का, डर आ रहा है, और डर से क्या हो रहा है, एंजाइटी आ रही है, एंगर आ रही है, सैडनेस आ रहा है। यहां भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर नहीं किया तो स्टेप 4 में जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हर वक्त इमेंस स्ट्रेस है, हर वक्त आदमी अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहा है, बीमारियों में जूझा हुआ है, मूड जो है स्विंग्स आ रहे हैं, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी काम करने की इच्छा है, कभी नहीं है। जैसे अपना मोबाइल है, जब बैटरी डाउन हो जाती है तो पावर सेविंग मोड में चला जाता है। ऐसे ही क्या है कि जब आदमी थक जाता है तो आदमी क्या करता है, कहता है ठीक है यार, जो हो रहा है सो होने दो, मस्ती में चल रहे हैं हम तो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ करने की इच्छा नहीं है, अब तो जो है ठीक है, रिटायर हो गए, अब क्या 65 के हो गए हैं, अब कितनी जिंदगी बची है, जो ईयर है, ऐसी बातें करने लग जाएगा। तो ये स्टेप 4 है। स्टेप 5 में क्या है, एक्सेसिव स्ट्रेस, फ्लड्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बाढ़ आने लग जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो ब्रेन सेल्स को किल कर देती है, जिससे क्या होता है, दर्दें शुरू, थायराइड डिजीज हो जाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि मैं ईएनटी सर्जन हूं, हम लोगों के अंदर ईयर के केसेस काफी होते हैं, पर आजकल सेकंड नंबर पे थायराइड डिजीज हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि जो थायराइड डिजीज है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, सारी बीमारियां उसको घेर लेती है। अगर यहां भी कंट्रोल नहीं हुआ तो क्रॉनिक फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, आदमी को क्रॉनिक फटीग, थका थका महसूस करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, अरे भाई अब तो मेरा सुसाइड करने को मन कर रहा है, मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, ये दुनिया भर की बातें करता रहेगा और जब परेशान रहेगा और कुछ करना भी नहीं चाहेगा। ऐसे लोगों को स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में अगर कोई पहुंच गया है, स्टेप 4 में पहुंच गया है, स्टेप 5 में है और 6 में है, तो उसको जो है साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत है और कुछ दवाइयां उसको लेनी पड़ती हैं। साथ में कुछ हम लोगों के होलिस्टिक मेथड्स के कोर्सेज हैं, वो लेने पड़ते हैं, जिससे कि जो है आदमी इम्प्रूव कर जाता है, धीरे 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 इम्प्रूव करता है, तो उसको दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये स्टेप 1 स्टेप 2 तक तो स्ट्रेस गुड है, उसके बाद स्ट्रेस बैड है, उसको कंट्रोल करना है, नहीं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीजें आपके सामने आने लग जाएंगी। ये आपने देखा होगा कि ओल्डन डेज में लोग स्ट्रेस लेस होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज कम थी, उनके इवेंट्स कम थे, उनमें वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा रहते थे। आजकल क्या हो गया है कि हमारा कंप्यूटर पे काम है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल के रूप में पावर है, उसके हाथ में पावर है, वो दिन भर लगा हुआ है, मोबाइल का खेल खेल रहा है। इसलिए क्या है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कमरे के अंदर अंधेरा है, अंधेरे में क्या है, आदमी को डर लगा तो उसने एक रस्सी को पकड़ लिया, रस्सी को जैसे पकड़ लिया, पकड़ा रहा, पर जैसे ही लाइट जली उसने देखा कि वो रस्सी नहीं है, वो सांप है, तो तुरंत छोड़ देगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पहले नॉलेज नहीं थी तो आपने इस स्ट्रेस को पकड़े हुए था, मतलब रस्सी को पकड़ा हुआ था, रस्सी समझ के बचाव के लिए अपनी बातों में उलझे हुए थे,
तो आज जब आपको ये नॉलेज मिल रही है, तो अब भी अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और रस्सी को, सांप को नहीं फेंक रहे हैं, तो अक्लमंदी का काम नहीं है। बेटर वर्जन कैसे बनेंगे आप? पर मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे ब्लेस्ड एंजल्स हैं, जो कि जो है इस वेबिनार में कम से कम 1 घंटे का समय निकाल कर तो आए। दूसरा क्या है, एक टेंडेंसी क्या है, एक रिसर्च हुई कि 3 मंकीज को एक पिंजरे में रखा गया और 1 हफ्ते तक उनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया। उनका स्ट्रेस लेवल लिया गया, मान लो 10 आया। ऐसे 3 मंकीज को दूसरे पिंजरे में रखा गया तो उनके सामने 3 मंकी ऐसे रखे गए जिनको अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छा म्यूजिक मिल रहा था। उनका स्ट्रेस लेवल देखा गया, उनका 100 निकला। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी अपने आप से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशी को देखकर दुख ज्यादा हो रहा है। उस 3 इडियट पिक्चर है, उसमें एक डायलॉग था, दोस्त अगर पास हो जाए तो ठीक है, अगर दोस्त टॉप पे आ जाता है तो कितना दुख होता है, ये दोस्त ही समझ सकता है। तो एक डायलॉग था उसमें 3 इडियट्स में, अगर आप लोगों ने देखी हो तो देखी होगी जरूर। तो दोस्तों, आप इस स्ट्रेस को रिलीज करने का क्या तरीका, इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू P इंटू R। P क्या है, प्रेशर है, वो R क्या है, रेजिस्टेंस। अगर किसी भी चीज को, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 100 हो, उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? रिजल्ट 0 आएगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरे मित्रों कि अगर प्रेशर तो बाहर से पड़ते ही रहते हैं, अगर हम अंदर का रेजिस्टेंस 0 कर दें तो हमारी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या है कि बाहर की दुनिया को सुधारना, बाहर की परिस्थिति को सुधारने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना। पर कमाल की ये जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा डिवाइन एनर्जी ने बनाकर भेजा है, जिससे हम अंदर की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। वो एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा क्या है? आप मेरी तरफ देखिए, यहां एक ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके पीछे रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर यहां रहता है थायराइड और पैराथायराइड, और नीचे आ जाएं तो यहां रहता है लिवर के अंदर पेनक्रियास, और नीचे आ जाएं तो यहां रहता है किडनीज के ऊपर रहता है एड्रेनल ग्लैंड्स, और नीचे आ जाएं तो रहता है गोनेट्स। लेडीज में ओवरीज होती हैं और जेंट्स में टेस्टिस होती है। ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, इनको हम लोग एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ये अगर हमने हैप्पी हार्मोन्स अगर हमने बना लिए, अगर हमने राम वाला ब्रेन एक्टिवेट कर लिया, जिसमें कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, तो ये पूरा हार्मोनी में चलता है, वो कोई भी बीमारी नहीं होती, वो कोई भी स्थिति को का रेजिस्टेंस नहीं आता। बचपन आएगा तो बचपन एंजॉय करेगा आदमी, जवानी आएगी तो जवानी एंजॉय करेगा, बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा एंजॉय करेगा, और डेथ आएगी तो समझ जाएगा कि कुछ नहीं है, टर्न हो गया है, टर्निंग पॉइंट है। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करेगा तो हो क्या रहा है, आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता, बुढ़ापा अगर नहीं आएगा, बुढ़ापा रुक जाता तो आदमी पूरा वर्ल्ड ही जवान होता। अगर बुढ़ापे को एक्सेप्ट करता है तो मौत का डर उसको सताता है। ये चीज हम लोग क्या, सिचुएशंस तो देखो आती नहीं, दिन आएगा तो रात आएगा, तो अपने को क्या फीड किया जाता है, रात को अंधेरे में घर मत, जल्दी आ जाना घर में, जल्दी घर में आ जाना भाई, रात में डर लगता है। अरे भाई, रात में क्यों डर लगता है? रात भी भगवान की बनाई हुई है, वो दिन भी भगवान का बनाया हुआ है। पानी में नहीं जाना, बह जाओगे।
हवाई जहाज में मत बैठना, क्योंकि हवाई जहाज से कोई गिरता है तो बचता नहीं है। तो इस टाइप के जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उन पे वर्क करना पड़ेगा। कहना सरल है तो वर्क करना आसान नहीं है। क्योंकि क्या है, जैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हेलो, म्यूट अनम्यूट, एक मिनट अनम्यूट कर दे, अपने माइक को अनम्यूट कर दी, म्यूट कर दीजिए। यस प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल। तो परिस्थिति जो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू रेजिस्टेंस। देखिए बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, पर जैसे बाहर की परिस्थितियों को हम कंट्रोल करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अंदर हमारे पास इनबिल्ट ऑर्केस्ट्रा है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर वो भी कंट्रोल करना, उसके लिए भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं कि एक गुरु और एक चेला थे। जो एक गुरु और चेला दोनों जो है आए थे, चल रहे थे। तो गुरु ने चेले को बोला कि उखाड़ दे। उसने उखाड़ दिया, एक छोटा सा पेड़ था उसने उखाड़ दिया। आगे चले, फिर गुरुजी बोले कि चेले उखाड़ दे, फिर उखाड़ दिया, क्योंकि 5 फुट का पेड़ था, उखाड़ दिया। और आगे चले, उसने कहा चले फिर उखाड़ दे, फिर उखाड़ दिया। 10 फुट का पेड़ था, उखाड़ दिया उसने दोनों हाथों से, थोड़ा परिश्रम करके। और आगे चले तो उन्होंने कहा गुरु जी ने कहा चेले उखाड़ दे। उसने गुरु जी क्या कर रहे हो, ये बरगद का पेड़ है, इसको आप और हम मिलकर दोनों भी उखाड़ नहीं सकते। मित्रों, हम लोग एडल्ट लर्निंग बुरी है। जो चीजें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो मेंटल ब्लॉक्स बन गए हैं, वो अपने अंदर अब बरगद के पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं। तो उस बरगद के पेड़ को अगर हमको हटाना है, अपनी आदतों को चेंज करना है, अपना बेटर वर्जन बनना है, वो अपना जो एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा इनबिल्ट है, उसकी हालत हमने खराब कर रखी है। तो उसके लिए हमको कुछ प्रयत्न तो करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब ही जाके ये बरगद का पेड़ निकलेगा, टूटेगा और अपनी विचारधारा बदलेगी, तो हम जाके जो है स्ट्रेस लेस बनेंगे। स्ट्रेस पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आप विश्वास करिए एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, हेट्रेड, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा। जो लोग जिन क्वालिटी स्ट्रेसलेस पर्सन क्या है, वो ऑप्टिमिस्टिक करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको परेशानी नहीं होती, तो परेशानी होती है तुरंत बाउंस बैक करते हैं। सेल्फ अवॉर्डेड, जैसे मैं भी अभी हो सकता है कि आपको वेबिनार के बाद बोलूं कि चैट बॉक्स में लिखो कि आपको वेबिनार कैसा अच्छा लगा, जबकि मुझे इसको कहने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अवॉर्डेड होते हैं वो लोग, अपने आप को देखते हैं कि कल से मैं बेटर हूं। एबिलिटी टू ट्रस्ट, वो दुनिया को शक की निगाह से नहीं देखते, वो विश्वास की निगाह से देखते हैं। पैशन, वो जहां भी जाते हैं, हम लोग उलझते हैं, वो लोग उलझते नहीं है, वो सुलझते हैं। अपने वर्क प्लेस में गए, जो भी काम बोला वो तुरंत कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैनेज इमोशनल स्विंग्स, वो जो है इमोशनल फूल नहीं बनते, इमोशनल इंटेलिजेंट बनते हैं। ये क्वालिटीज हैं आपके स्ट्रेस लेस पीपल में, और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। यस, ओके, वाई राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जस्ट हैव ए, नाउ आई विल गिव यू ए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर लोग हैं तो हम लोगों को आदत है प्रिस्क्रिप्शन देने की, तो वो कर दो।
तो मैं अपने पूरे वेबिनार को एक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में आपको समराइज करना चाहता हूं कि आप लोग भी जो है स्ट्रेस लेस लोगों की यूनिट में आए, कैटेगरी में आए। तो उसके लिए जो है मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? बी ईगोलेस। ईगोलेस ये कहा जाता है, ईगो इन, डिवाइन एनर्जीज आउट। आपने, होता क्या है कि अपनी, जब ये मेरा वेबिनार हो सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, उसको जरूर सुनिएगा। अभी तो मैं संडे को सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स पे बात करूंगा, उस पर भी आइएगा। सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स में आप देखेंगे कि जैसे कंतारा पिक्चर अभी आई है, उसमें बहुत अच्छा उसका विवरण किया गया है कि अभी हम लोग लगभग 40 लोग हैं इस वेबिनार में, और पर अपने को 40 लग रहे हैं, पर हजारों लोग बैठे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी बैठी हैं जो इस चीज को सुन रही हैं, और वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगी, वो आपको उस प्रैक्टिस में आपकी मदद कराएंगे। तो पर होना क्या है? ईगो लेस होना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दिस शैल पास। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ऐसी चीज बनाओ कि मैं उसको देखकर हर वक्त खुश रहूं। एक मंत्री ने उसको अंगूठी बना के दी। राजा एक दिन बहुत दुखी था, उसने अंगूठी देखी, उस पर लिखा था दिस शैल पास, मतलब ये टाइम भी पास हो जाएगा। तो राजा हंस दिया, मुस्कुरा दिया, तो उससे वो हंसता रहा। दूसरा ये सोचना है, डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। दोस्तों, ये इनबिल्ट ऑर्केस्ट्रा, ये करंट, ये सारे सिस्टम्स बॉडी के 99% कहाँ से गवर्न हो रहे हैं? ये वाटर साइकिल, क्लाउड्स का बनना, रेन का गिरना, हवाओं का चलना, ऑक्सीजन का आना, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड कंट्रोल कर सकता है, तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता? पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फॉल्स सपोर्ट में लगे हैं। इसको भी एक कहानी से समझाता हूं। एक राजा के दरवाजे पे एक दरबान खड़ा रहता था, जो बरसों से खड़ा था, जवानी से खड़ा था, अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में जब राजा एक दिन इवनिंग वॉक से लौट रहा था, तो उस दरबान को उसने देखा। उसको दया आई कि इतना पतला दुबला दरबान, बूढ़ा आदमी, इतनी ठंड में नंग बड़ंग एक चद्दर में खड़ा हुआ है। तो उसको उस पर दया आई। उसने दरबान से कहा कि मैं अभी अंदर जाता हूं, तेरे लिए कंबल भेजता हूं। राजा अंदर गया, खाने का टाइम था, खाने में लग गया, भोग विलास में लग गया, भूल गया कंबल देना। सुबह 5 बजे खबर आई कि जो 40 साल से दरवाजे पे खड़ा था वो मर गया। राजा को तरस आया, राजा भाग के गया, देखा उसकी जमीन पे लाश पड़ी थी। वो जमीन के बगल में एक ढेरी मिट्टी की पड़ी थी, उस पे लिखा था कि राजन, मैं 40 साल से तेरी नौकरी कर रहा हूं, हर बार ठंड पड़ती है पर मुझे ठंड नहीं लगती। तो कल रात जब आपने कंबल का आश्वासन मुझे दिया तो मुझे ठंड लगने लगी। मैं इंतजार करने लगा कंबल, पर कंबल नहीं आया तो ठंड से मेरी मौत हो गई। दोस्तों, आप लोग रिश्तेदारों के पीछे, दोस्तों के पीछे, अपनी कोई पब्लिसिटी के पीछे लगे हुए हैं। ये फॉल्स सपोर्ट है, इनसे आप नहीं जीतेंगे। जो चीज आपको गवर्न कर रही है, जो आपको बढ़ा रही है, जो आपका फ्लो कर सकती है, जो नेम, फेम और सक्सेस दे सकती है, उसके साथ जोड़ बनाए, फॉल्स सपोर्ट हटाए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मित्रों, कमाल है, लोग डर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कि ऐसा मैं करूंगा तो वो ऐसा कहेगा, ऐसा पहनूंगा तो वो ऐसा कहेगा। कमाल है, लाल साड़ी लोग पहन के खुश हो रहे हैं, पर एक किसी लेडी ने बोल दिया कि इस साड़ी में तुम मोटी लग रही हो, सारा साड़ी बेकार हो गई। तो ये रोग भी तो हटाना पड़ेगा। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम समस्या को बहुत बड़ा समझते हैं, और समस्या इतनी बड़ी नहीं होती।
एक कहानी से समझाता हूँ। एक राजा अपना उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता था, ढूंढी पिटवा दी, जगह जगह से लोग आए। राजा ने कहा कैसे पता लगाऊंगा। राजा ने एक कमरे में ताला लगा दिया और 2-4 इक्वेशन ऊपर लिखवा दी। हर लोग आए, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन आए, प्रोफेसर आए, इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे, पर कोई नहीं कर पाया, ताला नहीं खुल पाया। लास्ट में एक बगल वाले राज से 2 मैथमेटिशियंस आए, साथ में एक बच्चा भी चला आया। मैथमेटिशियन से बच्चे से कहा कि तू खोल के देख। नहीं नहीं महाराज, पहले आप कर लीजिए कोशिश। 4 दिन तक वो कोशिश करते रहे, इक्वेशन लगाते रहे, ताला नहीं खुला। तो बच्चे का नंबर आया, लोग हंस पड़े, लोग हंस पड़े। तो लोग जैसे ही हंस पड़े, बच्चे ने आंखें बंद करी, दरवाजे को धक्का लगाया, दरवाजा खुल गया, तालियां बज गई, वो राजा बन गया। ताला लगा ही नहीं था। कई बार समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, हम सोच सोच के उनको बड़ा रूप बना लेते हैं। तो लास्ट में मैं एक आपको वैक्सीन ऑफ स्ट्रेस देना चाहूंगा। वो भी वैक्सीन ऑफ स्ट्रेस क्या है? वैक्सीन ऑफ स्ट्रेस क्या है? एक बार एक राजा जिसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी, वो बड़ा, उसका राज बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश चल रहा था। एक दिन वो अपने स्टोर बॉक्स में, जो स्टोर रूम होता है जहां पर उसके पूर्वजों की फोटो लगी थी, उसमें घूम रहा था। उसने जगह जगह देखी कि सारे मेरे पूर्वज कितने जो है समझदार थे, कितने जो है शूरवीर थे। जब आखिरी में पहुंचा तो एक फ्रेम खाली थी जिसमें उसकी फोटो लगनी थी। उदास हो गया, मैं एक लंगड़ा, एक अंधा, एक काना, मेरी फोटो लगेगी तो मेरे पूर्वज कितने नाराज। उसने कहा मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने सामने जीते जी ही अपनी फोटो बनवाऊंगा, अपनी पेंटिंग बनवाऊंगा और उसको लगाऊंगा। उसने एक ऐलान कर दिया कि ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसको देख के मैं खुश हो जाऊं। अगर मैं खुश हो गया तो माला माल कर दूंगा, नहीं तो सूली पे चढ़ा दूंगा। सब घबरा गए। एक बच्चे ने कहा 15 दिन का समय दो, मैं बनाऊंगा। पेरेंट्स मना करते रहे पर लोग नहीं माने, वो नहीं माना। 15 दिन बाद पेंटिंग खुली तो पेंटिंग उसने क्या बनाई थी ये आप लोग देखिए। राजा खुश हो गया, उसको माला माल कर दिया। पेंटिंग क्या थी देखिए आप। ये देखिए, ये पेंटिंग बनाई। जो टांग उसकी खराब थी उसको उस तरफ कर दिया, जो आंख उसकी बंद थी उसको बंद कर दिया, कि आंखें बंद करके राजा तीर मार रहा है। दोस्तों, ये है वैक्सीन ऑफ स्ट्रेस। आपको नजरिया बदलना। जब आप अपना नजरिया बदल देते हैं तो आपकी जो परिस्थिति है वो बदलती है, पर आपके अंदर की स्थिति नहीं बदलती है, तो आप स्ट्रेस लेस हो जाते हैं। मित्रों, इन शब्दों के साथ ही मैं वेबिनार का यहाँ समापन करता हूँ, पर 5 मिनट का समय आप लोगों से और लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इतने उत्साह के साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि मैं जब ये वेबिनार बनाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और जब जो है आप लोग मेरे सामने आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, तो मुझे उसका आनंद मिल जाता है। मुझे, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते फाइनेंशियली एंड मनी एनर्जी की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है बेटर वर्जन बने। तो मैं एक साइकिल के रूप में एक कोर्स आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग उस साइकिल के पैडल चलाकर बिल्कुल बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बन सकें। जस्ट 2 मिनट में आपके वो लूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। 2 कोर्सेस मैंने छोटे छोटे डेवलप किए हैं जो कि काफी इन हो रहे हैं, लोग काफी जुड़ रहे हैं, काफी ले रहे हैं। तो मैं आपको भी एक वो ये साइकिल देना चाहता हूं, पर चलानी तो आपको ही पड़ेगी। दोस्तों,
पूरा ऊपर बेसिकली क्या है, जस्ट मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। कोई ये जो 2 कोर्सेस हैं, ये क्या, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, ये तो आपकी समझ में आ ही गया है। एक कोर्स का नाम है डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ बाय द पावर ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ एक ऐसा घोड़ा है, जैसे कि रथ के अंदर रथ को कंट्रोल करना है तो घोड़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसे अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो अपनी सांसों पे कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए 7 डेज प्रोग्राम है। डे 1 में हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, माइंड डेवलपमेंट करते हैं डे 1 में, और असेसमेंट में कुछ आप लोगों को देता हूँ। डे 2 में ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग पे चर्चा करते हैं। डे 3 पे हम लोग लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, और डे 4 में हम लोग मेडिटेशन पे बात करते हैं, और डे 5 में हम लोग प्राणायाम और स्लो मेडिटेशन पे बात करते हैं, और डे 6 में हम लोग फुल 5 डेज की प्रैक्टिस करते हैं, और लास्ट डे में हम लोग हाउ टू इनकॉर्पोरेट इन डेली लाइफ, इस पूरी चीजों को अपनी डेली लाइफ में कैसे डालें उसको बात करते हैं। इस कोर्स का नाम है डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ। इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? मेंटल कैंप फायर एवरी थर्सडे। हम लोग हर गुरुवार के दिन शाम के टाइम बैठते हैं और क्वेश्चन आंसर्स बात करते हैं। वो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आपको ऐड करते हैं, और इसका हम लाइफ टाइम एक्सेस आपको देते हैं। और वैसे तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कॉर्पोरेट्स के लिए 11,000 रुपए रखी हुई है, तो वेबिनार प्राइस, क्योंकि आप हमारे स्पिरिचुअल एंजल्स हैं, उसकी 1100 रुपए रखी है, और 20 मिनट के अंदर जो एक्शन टेकर लोग हैं वो इसको 499 में भी उठा सकते हैं। और स्पेशल ऑफर क्या है, जो सेकंड कोर्स है उसका एक बंडल बनाया है हमने, जैसे डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ बाय द पावर ऑफ ब्रेथ, ये 499 का है, और बीट योर स्ट्रेस बाय योरसेल्फ, इसकी प्राइस हमने 1999 रखी है। टोटल प्राइस होती है 2499, पर स्पेशल ऑफर में ये दोनों का बंडल बीट योर स्ट्रेस बाय योरसेल्फ, ये 1100 रुपए में आप ले सकते हैं, और 499 में एक डिटॉक्सिफाई वाला भी ले सकते हैं। मैं ये इसका बारकोड लगा हुआ है, जो लोग चाहें वो उसको स्कैन करके पेमेंट करके उसमें अपने आप की सीट बुक करा सकते हैं। मित्रों, जब तक ये लोग स्कैन कर रहे हैं, हम लोग जो है एक जस्ट जो है आप लोग अपनी जो अपनी एक्सपीरियंस है वो जो है चैट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं भी इंस्पायर्ड हो सकूं और मैं भी जो हूँ थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं। ये मेरा कहना है। 2 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, जब तक स्कैन करते जाएं मैं आप लोगों को एक मेडिटेशन करा लेता हूं, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स लोग पूछते जाएं। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लें। ये डॉक्टर तनवीर, थैंक यू डियर, थैंक यू डियर, सो नाइस ऑफ यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ये दिस अतुल रस्तोगी जी? You can raise Yes, your sir. hand. Good evening, sir. Good evening, sir. From where you, yes, Sir, I am Atul Rastogi. yes, Rastogi, how? पूछो क्वेश्चन, पूछो बॉस। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि प्रोग्राम ये कब से स्टार्ट होगा? ये तो क्या है, देखो एसएस है, ऑनलाइन एसएस है। अगर आज ही आप करेंगे तो कल आपको जो है डे 1 का आ जाए। लाइव चलेगा सर ये? हाँ, ये लाइफ टाइम एसएस है, लाइफ टाइम एसएस। नहीं, ये प्रोग्राम लाइव होगा? नहीं, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस है, पोस्ट तैयार है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, बीच में लाइव हमारे कैंप फायर में लाइव होंगे। अच्छा, ये दोनों जो बंडल हैं ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम में मिलेंगे हमें? ये दोनों रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स अपन ने वीडियो शूट किए हुए हैं, और अच्छा, इसके साथ से अपन बीच में लाइव होते ही हैं। जब कैंप फायर, जब अपन मेंटल कैंप फायर करते हैं ना, तो उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं अपन करते रहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसमें। अच्छा, ये जैसे जनरली हम पे करने के बाद हमें मतलब ऑनलाइन मिल जाएंगे ये दोनों? हाँ, ऑनलाइन आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने सुविधा अनुसार उसको जितनी बार, क्योंकि बेसिकली ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनका जब भी आप यूज करेंगे नए एसेंस निकल के आता है। जैसे मैं भी फॉरेन कंट्री के लोगों के या बड़े बड़े लोगों के मेंटर्स के कोर्सेज पकड़ता हूँ, तो क्या है, जब भी मैं देखता हूँ तो नई चीज निकल के आती है। तो इसका लाइफ टाइम एसेस ही जरूरी होता है। वो आजकल ऑनलाइन जमाना है, आज आपको टाइम है डे 1, पर ये कि सिस्टमेटिक वे में ही करें। जैसे जो सर, मैंने मेरे को
प्रॉब्लम केवल स्ट्रेस की है, बाकी कुछ नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। ये तो स्ट्रेस की प्रॉब्लम ही मेरे दोस्त सब लोगों को है, तो सारी बीमारियां स्ट्रेस की है। उसके लिए क्या करते अपन लोग कुछ नहीं है ना। देखो क्या है कि ये आप थोड़ा करेंगे, रियलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में डिफरेंस आएगा। ये तो क्या है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मेरा 30-35 साल और 20 कंट्रीज में घूमा हुआ और 5 लाख लोगों से मिलने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग वर्क नहीं कर, लोग चाहते हैं कि एक दवाई मिले सीधे, मानने को तैयार नहीं है लोग। हमारे डॉक्टर्स लोग ही मानने को कई बार बेटा तैयार नहीं होते, कि वही लोग तैयार नहीं होते, कह रहे यार ये तो ठीक है यार, ठीक है। तो ये आप लोग समझें और जाने, सब ऑथेंटिसिटी से एकदम काम है। थोड़ा आप देखें तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग उसको काफी अप्रिशिएट करें। ओके, थैंक यू सर। क्या इसको सर अभी परचेज कर सकते हैं? हाँ, अभी कर दीजिए आप ऑनलाइन, आपको आ जाएगा, टीम हमारी भेज देगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यस, गिव योर कमेंट्स। सर एंजाइटी डिसऑर्डर में ये काम करेगा क्या सर? देखो एंजाइटी होती क्यों है? स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। जनरली क्या होता है कि जब हम भविष्य में झांकते हैं तो एंजाइटी होती है, और जब हम पास्ट में जाते हैं तो डिप्रेशन होता है। तो स्ट्रेस पे ही कंट्रोल करना है। स्ट्रेस में कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, ये आपको कोर्स में अच्छा एसेंस के साथ मिलेगा। जी सर। सर स्लाइड 2 और 3 में आपने क्या समझाया था? रिकॉर्डिंग भेजूंगा, कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। मैं फोन नंबर दे रहा हूँ अपने सीएमई कोऑर्डिनेटर का, मिस्टर अनुज हैं, उनसे बात करके मैं आपसे बात कर लूंगा। जी सर। रिकॉर्डिंग भी इसकी भेजेंगे आपको, टेंशन नहीं करिए। जी सर। रिकॉर्डिंग भी कल आप लोगों को मिल जाएगी। पर चाहेंगे कि आप भी एक टेस्टिमोनियल भेजें, जिससे कि मैं अपनी वेबसाइट पे डाल सकूं। हमारी वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर एसपी साहनी के नाम से। सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सुझाव हो, कमेंट्स हो दें। सर मेरा तकलीफ होता है कोई टाइम, मतलब कोई टाइम में मेरा तकलीफ होता है, मतलब शरीर से पसीना निकल जाता है। वो एंजाइटी है। तो आप जो है ये जो डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ है, इस पे वर्क करिए, और बीच बीच में अपन बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो बिना दवाई के ही आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई दवाई चल रही है तो अभी उसको चलने दें, बंद ना करें। ओके सर, ओके सर, ओके, मैं पेमेंट करता हूँ। ये बारकोड हम लोग उसमें भी लगा रहे हैं, तुरंत आप लोग स्कैन करिए। जी सर। ओके, एनी क्वेश्चंस? गिव योर टेस्टिमोनियल्स, गिव योर कमेंट्स। ओके, अब कोई क्वेश्चंस नहीं है तो यहाँ वाणी को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वेबिनार जो है मेरा संडे को है 2 से 3, जिसमें सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स पे बात करेंगे। उसमें भी अपने आप को रजिस्टर कराएं, वो भी टोटली फ्री है। यू रॉक। थैंक यू भोजवानी साहब फॉर योर मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। नमस्कार।